First and foremost thing, very happy good evening to each and every one of you. Uh, I hope my voice is audible. Good evening, Neha. Good evening, everybody. Good evening, Amit. Uh, okay, fine. So we should get started with a small tense that I'm going to take. I usually don't take tenses, upfront, but this is a tense that I thought of taking it because this is a tense in which people commit lots of mistakes. So I'm going to take this only for 5 or 7 minutes, and then after we'll go for language improvement. Okay, so we are going to take one very important tense, present perfect continuous. As you know, students, that there are four types of tenses. First, as far as present tense is concerned, first is simple present tense, second is present continuous, third is present perfect, and fourth is present perfect continuous. So can anyone tell me how can you write a present perfect continuous? Can anyone write a small sentence on present perfect continuous? I would want you to write a small sentence on present perfect continuous. Can anyone help me out with this? Yes, students? Can anyone help me out with present perfect continuous? I want you people to give me responses. Yes, anyone help me out with very good. Parth has given me, I have been learning IELTS. Very nice. That's great. I have been writing letter. Exactly. So this is how you write. Very good. I can see lots of responses can be used. Okay. So this is how the present perfect continuous can be utilized. It is subject plus have or has been plus verb in ing form. This is how you are going to write present perfect continuous. But it is a very good sentence. It is a very good tense if you want to write a complex sentence. Now, when you go for speaking, if you utilize, simple present and present continuous, और आप इस्तेमाल करते हो present perfect और present perfect continuous का successfully and accurately, you are more likely to get great scores. Because when you go for advanced tenses like present perfect and present perfect continuous, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इस बच्चे के पास नॉलेज अच्छा है. ओनली देन यू आर एबल टू सक्सेसफुली एंड एक्यूरेटली यूटिलाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज बीन प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म. जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग आईएलटीएस, ही हैज बीन टीचिंग आईएलटीएस, यू हैव बीन टीचिंग आईएलटीएस. मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो हैव बीन, और थर्ड पर्सन है तो हैज बीन. ओके, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? So it shows actions that started in the past and are still continuing. ये टेंस का इस्तेमाल होता है ऐसी कोई चीज के लिए या फिर ऐसी कोई एक्शन के लिए जो पास में चालू हुई है एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर फॉर एन आवर और सिंस 4 PM. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप सब लोग इसका गौर से ध्यान रखें. He has been playing basketball since he was a child, या तो फिर he has been playing basketball since 15 years. She has been learning French for 10 months, or she has been learning French since last September. We have been living in this city for a long time, or we have been living in this city since 1990. Now, can you help me out, students? क्या आप मुझे आप बता सकते हो, for example, कि हमने इसमें since और for का क्या मतलब है? Can anyone help me out the correct usage of since and for? I want somebody to help me out on this. Yeah, I am willing to unmute anybody if somebody is willing to explain me. मेरे यहाँ पे, yes, PU, yeah, can anyone help me out in explaining since or for का? Yeah, Parth, can you explain? फॉर मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता हो, और सिंस मतलब हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता है. Okay, fine. Now this is how it works, my dear students. He is absolutely right. अब हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? If you want to mention the starting point, you can mute yourself, Parth. If you want to mention the starting point, then use since. But if you want to mention the duration, then use for. मतलब अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, जैसे कि आपने स्टार्ट किया, आई हैव बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर सिंस 4 PM, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहा तो आप सिंस का इस्तेमाल कीजिए. और अगर आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हो तो आप फॉर का इस्तेमाल कीजिए. फॉर एग्जांपल, फर्ज कीजिए कि आप 4 बजे से मेरे लेक्चर का वेट कर रहे हो, तो यू कैन से आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर लेक्चर सिंस 4 PM, या तो फिर आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर लेक्चर सिंस फॉर 2 आवर्स. तो याद रखना है सिंस कैसे स्टार्ट करना है. इफ यू आर लुकिंग फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, देन यूज सिंस. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन, देन यूज फॉर. ओके, आई वॉन्ट यू टू अलर्ट फॉर ए कॉमन मिस्टेक हो रही है. यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिस्टेक आपसे साथ शेयर करना चाहूंगा. ये शेयर ये है कि इफ यू वांट टू से आई एम वेटिंग टू सी द डॉक्टर फॉर 1 hour, मतलब
अगर आप ड्यूरेशन की बात करते हो तो आप सिंपल ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आप करते हो इट इज कंसिडर्ड इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट से आई एम वेटिंग टू सी द डॉक्टर फॉर 1 आवर। ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, वेटिंग टू सी द डॉक्टर फॉर 1 आवर, ऐसा समझते कि ये सही है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। आपने ये लिखना है आई हैव बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर फॉर एन आवर, या तो फिर आई हैव बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर सिंस 4 PM। तो याद रखना है आप लोगों को, अगर आप ड्यूरेशन की बात करते हो तो आप सिंपल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैज और हैव बीन प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल करोगे। वैसे ही यू कैन नॉट से ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस ही वाज अ चाइल्ड, बिकॉज यू आर मेंशनिंग द ड्यूरेशन, सिंस से स्टार्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे he has been playing basketball since he was a child, या तो फिर he has been playing basketball since 15 years. So remember one thing, when you mention the amount of time like an hour or the starting point like 4 PM, you must use present perfect continuous tense. ज्यादातर इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब ड्यूरेशन बनाना चाहते हो, या तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूं आई हैव बीन टीचिंग आईएलटीएस सिंस 2001, या तो फिर आई हैव बीन टीचिंग आईएलटीएस फॉर 20 years. This is how I can effectively utilize this sentence. I cannot say I am teaching IELTS since 15 years or 20 years. कितना सिंपल मिस्टेक हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा that you lack the knowledge required, you lack the grammatical knowledge required to get 7, 7.5 और 8 bands. तो याद रखना है, अगर कोई ऐसी चीज जो पास में चालू हुई है और कंटिन्यू कर रहे हो अभी, एंड इफ यू वांट टू मेंशन द ड्यूरेशन सिंस, अगर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर ड्यूरेशन, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही इस्तेमाल कीजिए। ओके, लेट अस हैव अ स्मॉल सेशन एक्सरसाइज। आई एम गोइंग टू गिव यू 3 minutes. लेट मी सी हाउ यू डू इट, लेट मी गेट द आंसर्स एज आई ऑलवेज डू। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इट इज 1 to 8. यू नीड टू ओनली यूटिलाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे हमने ड्यूरेशन सिंस और फॉर किया हुआ है, सो दैट्स द रीजन। ओके, हैज और हैव दोनों का इस्तेमाल होगा, बिकॉज यू स्ट्रिक्टली नीड टू यूटिलाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो यू आर गोइंग टू यूटिलाइज हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। Let me know when you are done, we'll correct the answers, but do it very very seriously. Don't take it lightly. This will help you out in getting a good score in speaking. Let me know when you are done. Okay, Rushika has done, but I'm not getting answers from many of you. So let me know when you are done. We'll check the answers, but do it precisely. बिल्कुल शिद्दत से करो ताकि आपको पता चले, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. Okay, Manshu is there. Okay, Kinjal is done. Leher is done. Nidhi is done. Okay, very good. So can we check the answers now, students?
Okay, now let us go for the answers, checking of answers, and let me know how many of you got, the answers, each and every answer correct. Okay, so this is the answers. These are the answers. Mrs. Rose has been teaching English for 10 years. Her grandma has been talking for 3 hours. A little boy has been standing at the door since then. If let me know if at all you have got any one of this, correct. Let me know. Okay. I want to help Kelly. She has not been working for months. A strange man has been following us for hours. Okay, very good. The baby has been crying for 15 minutes. How long? I don't know how many of you got seventh right. How long has Dan been driving? यहाँ पे थोड़ी सी गलती होने की गुंजाइश है. And finally, have you been watching me? So these are all the answers. I know how many. I want to know how many of you got all correct. Many of you got all correct. काफी लोगों को 2 या 3 गलत भी हुए हैं, but it is absolutely fine. I hope this is understood to you. इसमें से एक चीज निकाल के आनी है आपको, very very important. Okay, fine. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, या एक चीज जल्द, या एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो. Let us have a small recap. You are always going to utilize present perfect continuous for those activities that got started in the past and it is still going on. But it is more important for you to utilize this. यहाँ पे since और for का इस्तेमाल बहुत जरूरी है. Since जब starting point है, for तो duration है. इसके लिए मैंने एक बहुत सुंदर सा आपको एग्जांपल दिया था. I have been teaching IELTS since 2001, but yeah, Dhruv, yeah, you can, yeah, this will be taught over there as well. Yeah, so और अगर आपको ड्यूरेशन बताना है तो for का इस्तेमाल कीजिए. Is it getting clear everybody? Yes or no? Shall we move ahead now with the next session? Clear हो गया? Present perfect continuous everybody. Subject plus is, sorry, has or have. I repeat, subject plus has or have plus been plus verb in ing form. और बाद में याद रखना है since or for. Okay, now let us take a new session, very very important session. We are going to work out with language improvement. Okay, या राइटिंग स्किल्स टू अचीव मोर देन 7 मिनट्स. तो ये आपको लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में ले रहा हूँ और मैं चाहूंगा ये चीज को भी आप बिल्कुल गौर से देखें और सुने. ये सारी चीजें जो मैं सिखा रहा हूँ ये आपको 7 मिनट्स के ऊपर ले जाएगी. और आप बोलोगे सर राइटिंग में 7 मिनट्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप 7 मिनट्स नहीं 8 मिनट्स के लिए तैयारी करते हो then you can expect to get 7 minutes. If you are preparing for 7 minutes then you cannot get 7 minutes, you will only get 6 minutes. Okay, now राइटिंग में एक बहुत अच्छी चीज है अवॉइडिंग जनरल स्टेटमेंट्स टू गेन अ बैंड 7 और अबव. ना आप लोग मुझे बता पाएंगे ये मैं क्या सिखाने वाला हूं? कैन एनीवन टीच मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवॉइडिंग जनरल स्टेटमेंट्स टू गेन अ बैंड 7 और अबव? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल स्टेटमेंट्स? क्या है इसका मतलब? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल स्टेटमेंट्स? नो, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है. नहीं नहीं नहीं, जनरल स्टेटमेंट, मैं सिंपल सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं पार्थ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल सेंटेंसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. मैं ये चीज बता रहा हूं कि अगर आप इसको गौर से देखें, ओवर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड मेक्स अवर यंग पीपल ओवरवेट. इसको गौर से पहले देखिए जरा. ट्राई टू यूटिलाइज दिस थिंग, ट्राई टू लुक एट दिस थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं सिखा रहा हूँ, ये आपको 7 बैंड्स के ऊपर ले जाएगी. काफी बच्चे जिनका इंग्लिश भी बहुत अच्छा होता है, दे आर लाइकली टू कमिट दिस स्मॉल मिस्टेक्स. ओवर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड मेक्स अवर यंग पीपल ओवरवेट. As a result of our very busy modern lifestyles, people are eating convenience food on daily basis these days. Convenience का मतलब कह सकते हो आप फास्ट फूड, ऐसा फूड जो आपको तुरंत मिल जाता है, ऐसा फूड जो शायद पकाना नहीं पड़ता या पकाने में टाइम लगता है, तो ऐसा फूड जो जल्दी से बन जाता है. That's the reason we are utilizing the word convenience. So now, can you tell me what is this sentence grammatically correct? First of all, can anyone tell me is this sentence grammatically correct? Let me know. Let me know if this sentence is grammatically correct or incorrect. और अगर incorrect है तो कहाँ पे है? मैं चाहूंगा किसी को म्यूट करने की मैं कोशिश करूंगा.
If any one of you is willing to get himself unmuted, I am willing to do that. चलिए बताइए, मैं ये इसमें गलती क्या है, कौन बताएगा? चलो मुझे, कैन एनीवन हेल्प मी आउट? ट्राई कीजिए, ट्राई करने में हर्ष क्या है? Yeah, who is going to explain me? Yeah, Dhruv, can you do that? Yes, sir. The word inconvenience. Inconvenience यहाँ पे, okay, या मतलब People are. It should be like people are eating inconvenient food or ये unhealthy food. नो कन्वीनियंस फूड का मतलब ध्रुव होता है कि ऐसा फूड जो बनाने में आसान है. दैट्स व्हाट वी कॉल एज कन्वीनियंस फूड. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट पार्ट. So that's not an issue. Okay, you can mute yourself. Anybody else who is planning to tell me? Yes, anybody else who is planning to help me out? चलो चलो, बहुत important है. Varda is going to tell me. Varda, okay, let me explain. Varda को मैं, yeah, Varda, can you tell me? Yes, sir. Yeah. Are you able to hear me? Absolutely. Go ahead. Yeah, I think, sir, that the busy, there is a comma over there. I think the comma should not be there. Okay. Okay, comma is there. Okay. Now let me tell you students that यहाँ पे कोई grammatical mistake है ही नहीं. This is not about grammar because ये grammar है ही नहीं. इसमें grammar का problem ही नहीं है. इसमें problem क्या है मैं आपको बताता हूँ. चलिए, let me explain you first of all. Can you tell me that over consumption of fast food makes our young people overweight? क्या ये सब लोगों के लिए? No, there is nothing wrong in grammar. क्या over consumption of fast food makes our young people overweight? Now, if you look at this sentence, इसमें ऐसा लिखा है कि over consumption of fast food ये सारे यंग लोगों को ओवरवेट कर देता है. नाउ यू कैन नॉट से दिस स्टेटमेंट फॉर एवरीबडी, इजंट इट? अगर आप ओवर कंजम्पशन, फॉर एग्जांपल, अगर आप ओवर कंजम्पशन, काफी लोग मैंने देखे हुए कि फास्ट फूड पूरे दिन खाते रहते हैं लेकिन पतले के पतले रहते हैं, हाँ या ना? और काफी, और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ आवर वेरी बिजी मॉडर्न लाइफस्टाइल्स पीपल आर ईटिंग कन्वीनियंस फूड ऑन डेली बेसिस दिस डेज. अब ये जो हमने बात की है यहाँ पे, दे हैव टॉक्ड अबाउट पीपल, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द एंटायर सेगमेंट ऑफ पीपल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीबडी. ऐसा है कि सबकी बिजी लाइफस्टाइल है तो सब लोगों ने कन्वीनियंस फूड खाना चालू कर दिया है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी चीज को जनरलाइज करता है, और ऐसा आप नहीं कर सकते इन फॉर्मल राइटिंग. फॉर्मल राइटिंग में यू नीड टू बी वेरी कॉशियस इन व्हाट यू से. आप अगर एक मैच्योर राइटर हो तो आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं कह सकते जो सबके लिए एप्लीकेबल है. फॉर एग्जांपल, इफ आई से ओवर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड मेक्स अवर यंग पीपल ओवरवेट, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ओवर कंजम्पशन फास्ट फूड करता है वो सारे के सारे लोगों को ओवरवेट कर देता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता ना. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू कंज्यूम फास्ट फूड मेनी बिकम ओवरवेट बट मेनी स्टिल रिमेन थिन एंड वेरी वेरी they don't become fat, they don't become obese. तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कहेंगे जनरलाइज स्टेटमेंट. और IELTS में अगर आप इसको देखेंगे तो ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स है जो कोई आपको सिखाता नहीं है, और मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूं. कैन यू टेल मी एग्जैक्टली 7th, ये जो पॉइंट है, मैं चाहूंगा आप इस चीज को गौर से पढ़े, इसको गौर से पढ़े और मुझे बताइए क्या है ये. Can you look at this? इसको देख रहे हो आप? हाँ. नाउ टेल मी व्हाट डज दिस मीन. 7th बैंड में लिखा है कि प्रेजेंस एक्सटेंड्स एंड सपोर्ट्स मेन आइडियाज बट देयर मे बी अ टेंडेंसी टू ओवर जनरलाइज एंड और सपोर्टिंग आइडियाज में लैक फोकस. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर मे बी अ टेंडेंसी टू ओवर जनरलाइज. इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टेटमेंट जब लिखते हो आप ओवर जनरलाइज कर देते हो एज इफ इट इज अफेक्टिंग द एंटायर जनरेशन, एंटायर सेगमेंट, एंटायर सब्जेक्ट, एंड दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. अगर आप ऐसा करते हो तो एक मैच्योर ऐसे नहीं लिखते. अगर आप ऐसा करते हो तो आप 7 बैंड्स तक बहुत धीरे से पहुंच पाओगे. 7 बैंड के बाद तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे. 7 बैंड में सामने ही लिखा है कि अगर आप ओवर जनरलाइज करते हो तो 7 बैंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे. अब आप बोलोगे कि सर 7 बैंड तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें भी तो चेक होगी. लेकिन ये करने से तो तय है कि इस केस में आपको टास्क अचीवमेंट में ज्यादा बैंड्स नहीं मिलेंगे. तो कहने का मतलब ये है. नाउ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस. इन द मार्किंग क्राइटेरिया अंडर टास्क रिस्पॉन्ड इट सेज दिस अंडर 7 बैंड्स जो हमने अभी आपने देखा. प्रेजेंट्स
extends and support main ideas, but there may be a tendency to overgeneralize and oblique our supporting idea may lack focus. बट जो अंडरलाइन चीज की है उसको गौर से देखे, टेंडेंसी टू ओवर जनरलाइज. अब सर ये क्या है, अब इसको देखते हैं. देखिए वापस स्टेटमेंट करेंगे. ओवर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड मेक्स अवर यंग पीपल ओवरवेट. और दूसरा, as a result of our very busy modern lifestyles, people are eating convenience food on a daily basis these days. अब इसके बदले अगर आप गौर से देखें, in the sentences about the student is essentially saying that fast food makes all our young people overweight and that everyone eats convenience food. These statements are not simply true, so therefore my student was overgeneralizing. मतलब my student मतलब आपकी बात कर रहा हूं. अगर आपने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ, पहले स्टेटमेंट से ये निकल के आता है कि सारे लोग ओवरवेट हो जाएंगे, और दूसरे स्टेटमेंट में आता है कि सारे लोग कन्वीनियंस फूड खाते हैं. तो आपने ओवर जनरलाइज कर दिया. मतलब आपने ऐसा लिखा जो सारी समुदाय को ये लागू पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है. ऐसा करने से आपको 7 बैंड्स से ज्यादा नहीं मिलेंगे, हो सकता है बहुत कम बैंड्स मिले. तो सर कैसे लिखना है, तो हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे? हम इसको ऐसे अवॉइड करेंगे. देखिए, इन ऑर्डर टू मेक योर रिटन वर्क साउंड मोर एकेडमिक, you need to use what we call hedging language to avoid making general statements. Have a look at how I have adapted the sentences from earlier. अब मैं इसको ऐसे करता हूं. देखो, ओवर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड कैन मेक आवर यंग पीपल ओवरवेट. क्या चेंज किया मैंने? What did I change everybody? I want answers from everybody. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं सिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा सारे लोग इसको गौर से देखें. मैंने क्या किया चेंज? What did I change? Everybody. Yes, can make. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पीपल ओवरवेट हो सकते हैं. जरूरी नहीं कि सब हो जाएंगे, इससे लोग ओवरवेट हो सकते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड. दूसरा स्टेटमेंट देखिए, अगर as a result of our very busy modern lifestyles, many people are eating convenience food on daily basis these days. मैंने सिर्फ आगे मैनी कर दिया. मैनी का मतलब सारे लोग नहीं, सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग, लेकिन सारे लोग नहीं. मैनी मतलब काफी लोग, लेकिन नॉट ऑल पीपल. और वो बात सही भी तो है. यू कैन नॉट से दैट ऑल पीपल आर ईटिंग कन्वीनियंस फूड. अगर किसी के पास मॉडर्न लाइफस्टाइल या टाइम नहीं है तो सारे के सारे लोग कन्वीनियंस फूड नहीं खाते. काफी लोग ऐसे भी जो मैनेज करके हेल्दी फूड भी खाते हैं. सो यू कैन नॉट से अ स्टेटमेंट लाइक एज ए रिजल्ट ऑफ आवर वेरी बिजी मॉडर्न लाइफस्टाइल्स पीपल आर ईटिंग. तो मुझे मैंने कर दिया, इसका मतलब काफी लोगों को ये एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिसको वो एप्लीकेबल नहीं है. इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर आप ऐसे वर्ड्स डालेंगे, ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट अ गुड स्कोर इन राइटिंग. इसी को आप फॉर्मल राइटिंग कहेंगे. और मैं चाहूंगा जब आप ऐसे लिखे तो इस चीज का बिल्कुल गौर से ध्यान करें. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. द एडिशंस, देखो कितना छोटा एडिशन में किया, बहुत छोटा है, आर टाइनी, बट दे मेक ऑल द डिफरेंस, इंश्योरिंग द स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट साउंड मोर परस्यूएसिव एंड कॉशियस. ओके, दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा. आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए, जैसे कि मॉडल वर्ब्स मे, माइट, कैन, कुड. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐसा दिखाते हैं कि ये काफी लोगों को एप्लीकेबल है, लेकिन सब लोगों को नहीं. ओवर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड कैन मेक आवर यंग पीपल ओवरवेट. दूसरे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, appear, seem, tend to. जैसे कि ओवर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड टेंड्स टू मेक आवर यंग पीपल ओवरवेट. ये करने की संभावना रखते हैं, सबको कर देंगे इसका मतलब ये नहीं है. फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स आप ऑफ्टन, यूजुअली, समटाइम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि ओवर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड ऑफ्टन मेक्स आवर यंग पीपल ओवरवेट. चौथा है प्रोबेबिलिटी एडवर्ब्स, जैसे कि कॉमनली, जनरली, पॉसिबली, प्रोबेबली. ओवर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड जनरली मेक्स आवर यंग पीपल ओवरवेट. वापस देखिए, जनरली का मतलब सब लोग नहीं, काफी लोग इंक्लूडेड है, लेकिन काफी लोग ऐसे भी है शायद उनको उसकी असर ना हो. एक्सप्रेशंस जैसे कि इन सम केसेस, आप ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हो. इन सम केसेस मतलब काफी केसेस में, लेकिन काफी केसेस में नहीं. फॉर सम पीपल, फॉर मेनी पीपल, इन मेनी इंस्टेंसेस, द मेजॉरिटी ऑफ. इट कैन बी आर्ग्यूड दैट का मतलब एक विचारधारा ऐसी है जो कहती है कि ऐसा हो सकता है, एक विचारधारा ऐसी है जो कहती है ऐसा नहीं हो सकता. तो ये सारी चीजें ऐसी है जो कहती है
कि ये ज्यादातर होने की संभावना है, लेकिन ये पूरे समुदाय पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो देन यू मेक ए जनरलाइज स्टेटमेंट एंड विच विल फेच यू अ लोअर स्कोर। जैसे कि आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, इन मैनी इंस्टेंसेस, काफी इंस्टेंसेस में ऐसा होता है, over consumption of fast food makes our young people overweight. Is it clear everybody? I am trying to explain in the best possible manner that I can, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स। आप जब ऐसे लिखते हो तो यही डिसाइड करेगा कि आपको अच्छे स्कोर्स आने चाहिए या फिर आपका वहीं पे 6 साढ़े 6 पे गाड़ी रुक जाती है, तो ये चीजें तय करती है। एडवांस चेकिंग में ये सारी चीजें होती है। क्लियर एवरीबडी? यस और नो? यस और नो कहने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू। ओके, ग्रेट। वेरी गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, चलिए अब मुझे बताइए कि इसमें बताइए कहां पे है मैंने ये हेजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। चलिए बताइए, मैंने एक सेंटेंस लिए, ये पैराग्राफ लिखा है, मुझे बताने का कष्ट कीजिए कहां पे मैंने हेजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, कॉशियस वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। चलिए लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। शांति से, सुकून से। वेरी गुड, मेनी पीपल आर कमिंग विथ गुड वर्ड्स, वेरी गुड। अगर आपने मेरा लेक्चर ठीक से पढ़ा है, सुना है, तो आप इसको ठीक से कह पाओगे। वेरी गुड। वेरी नाइस, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी हाउ इट, किसका सही आता है। चलिए, ये सारे वर्ड्स है जिसका हमने, जस्ट अ मिनट। सो दिस आर द वर्ड्स दैट शोज दैट आई हैव यूटिलाइज्ड, जैसे कि यहाँ पे देखिए, देयर इफेक्ट्स कैन बी डिफिकल्ट, हाउएवर लार्ज स्टडीज टेंड टू शो। टेंड टू शो, आप टेंड टू शो करेंगे तो इससे पता चलता है कि टेंड टू शो मतलब शो, ये कहने की संभावना रखते हैं, ऐसा कहते ही है, ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज लाइट स्मोकिंग सीम्स टू हैव ड्रामेटिक इफेक्ट्स ऑन, सीम्स टू हैव बहुत अच्छा वर्ड है ये, ऐसा वर्ड है जो आप डालोगे जो 7 बैंड के ऊपर वाले ही लोग इस्तेमाल करते हैं, सीम्स का। टू हैव ड्रामेटिक इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, शॉर्टर ड्यूरेशन माइट ऑल्सो बी एसोसिएटेड विथ ए हायर देन एक्सपेक्टेड रिस्क। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया सब कुछ? so that I can move on with the third part of our coaching. चलिए, any questions, any doubts? Done? Shall we move ahead now? मैं बहुत important session लेने वाला हूँ and this is I am going to take is ऐसे लेने वाला हूँ। काफी बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर ये ऐसे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। चलिए ऐसे लेते हैं। ये जो ऐसे लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे। There were number of students who were telling me सर कि एक एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे लीजिए जिसमें हमें गलती होने के चांसेस है। Now this is a very important session जो मैं कहूँगा। No, you cannot highlight Drumil. No, you cannot do that. You don't need to highlight. ये मैंने खुद ने हाईलाइट किया था। आप में से एक बच्चे ने ऐसा पूछा है कि सर मैं ये चीज को हाईलाइट कर सकता हूँ। एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग खुद देख लेंगे अगर आपने इस वर्ड्स का इस्तेमाल किया, बट डोंट हाईलाइट दोज वर्ड्स ड्रूमिल। ओके ओके, सो today's topic is very important. Today's topic is advantages outweigh disadvantages. Now you might be wondering कि सर ये क्या है? Now those students who are new or those students who are not very much conversant with the essay part, let me tell you IELTS में एक ऐसे टाइप होता है जिसको हम कहेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में 3 टाइप्स ऑफ ऐसे होते हैं, इसको गौर से देखिए आप। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या विल डू दैट। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में 3 टाइप के ऐसे होते हैं। यू फर्स्ट डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब आपको सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने हैं। दूसरा है डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओपिनियन, जहां पे आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करने हैं और आपको अपना ओपिनियन भी देना है कि आपको क्या लगता है। और तीसरा जो हम लोग आज लेने वाले हैं वो है एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस।
तो ये जो ऐसे है, ये ऐसा है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि भी एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है कोई भी चीज के, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस का पल्ला एडवांटेज मतलब अगर एडवांटेजेस है तो उसका पल्ला डिसएडवांटेजेस से शायद ज्यादा भारी है, या तो फिर डिसएडवांटेजेस का पल्ला एडवांटेजेस से ज्यादा भारी है, वैसा वर्षा कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, दोनों एग्जांपल सेम ही है, एक ही ऐसे है, लेकिन देखो अलग अलग तरीके से पूछे गए। इट इज कॉमन नाउ इन डिफरेंट कंट्रीज टू यूज केमिकल्स फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, although there are downsides का मतलब होता है disadvantages to such use, the benefits are undoubtedly greater। भले ही इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस है, लेकिन इसके फायदे अनडाउटेडली मतलब बगैर कोई डाउट के उसके ज्यादा है। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऐसा। और दूसरा देखते हैं, डू द डेंजर्स डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ केमिकल्स इन फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन आउटवे द एडवांटेजेस। इसमें ऐसा लिखा है कि क्या आपको लगता है कि डेंजर्स जो हासिल होते हैं हमें केमिकल्स को फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल करने के लिए, उसका जो डेंजर्स है वो डेंजर्स मतलब डिसएडवांटेजेस ज्यादा है एडवांटेजेस से। बात वही है, ये पैराग्राफ जो पहला ऐसे उसमें भी वही चीज थी, इसमें भी यही चीज है, लेकिन पहले ऐसे में ऐसा लिखा है कि भैया पल्ला भारी है एडवांटेजेस का, और इसमें लिखा है कि पल्ला भारी है डिसएडवांटेजेस का। इज इट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर और नॉट टू एवरीबडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं सिखा रहा हूं आज आपको। Is it clear first of all? Very good. Have you understood the topic what I am trying to convey? Very good. Great. Nice. Great. चलिए, हाँ रिपीट करना है आपको, एक दो लोगों ने ओके यहाँ पे ऐसा लिखा है कि क्या आप शायद काफी स्टूडेंट्स दे वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन, लेट मी एक्सप्लेन यू। आप लोग काफी लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते होंगे, होटल्स में जाते हैं तो कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आप काफी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल बिस्किट्स वगैरह, तो बिस्किट्स में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। केमिकल्स का इस्तेमाल क्यों होता है? ताकि ये जो है प्रोडक्शन ज्यादा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप काफी वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं तो उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, और प्रोडक्शन हो जाने के बाद उसको प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि अगर आप बिस्किट्स लेते हो तो बिस्किट्स को आप लोगे तो उसको प्रिजर्व करने के लिए भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो होता है उसका ये फायदा ये है कि इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, और इसका फायदा ये भी है कि इससे प्रिजर्वेशन, मतलब आपको पता होगा अमूल का दही, आप जो कर्ड खाते हो, अमूल का दही शायद 3 या 4 दिन तक चलता है आपके फ्रिज में, और आपका घर का दही कितने दिन चलता है? 1 या 2 दिन में खराब हो जाता है, इजंट इट? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अमूल यूटिलाइजेस प्रिजर्वेटिव्स इन कर्ड, इन मिल्क, इन चीज वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये ऐसे कहता है कि क्या लगता है कि ये चीज जो है उसके फायदे है उससे ज्यादा उसके गैर फायदे है। इज इट नाउ क्लियर एवरीबडी? यस और नो? ओके ग्रेट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये टाइप का जो ऐसे है उसको कैसे लिखेंगे। नाउ दिस इज द फॉर्मेट दैट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड। ये फॉर्मेट को समझना जरूरी है, ये फॉर्मेट मैं बाद में दूंगा, बट यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर्मेट फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज होगा। ये फॉर्मेट में सिर्फ मैंने ये दिखाया है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है तो कैसे लिखना है। ये फॉर्मेट में ये नहीं लिखा है कि अगर एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस है तो कैसे लिखना है। एक चीज का याद रहे कि सारी चीजें लगभग लगभग सेम रहेंगी बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 की। द थीसिस स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 is going to change in first paragraph, and there is also going to be a minor change in the fourth paragraph, मतलब के कंक्लूजन में दोनों में हल्का फुल्का चेंज होगा इन राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप अपना ओपिनियन देते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपिनियन देना ही नहीं है। जैसे कि ये जो फॉर्मेट है इसमें सिर्फ आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बयां करने हैं, ओपिनियन नहीं देना है। लेकिन हमने जो अभी ऐसे डिस्कस किया उसमें आपको अपना ओपिनियन भी देना है। तो ऐसे केस में थीसिस स्टेटमेंट में आपने ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ये बहुत अच्छे सेंटेंसेस है जो आप इस्तेमाल करोगे इन इंट्रोडक्शन एंड इन कंक्लूजन। एक चीज का याद रखना है आपको कि अगर इंट्रोडक्शन में फर्ज कीजिए इन इंट्रोडक्शन इफ यू यूटिलाइज दिस स्टेटमेंट, डोंट यूटिलाइज द सेम स्टेटमेंट इन इंट्रोडक्शन, sorry in conclusion. You can utilize any one of the remaining statements in conclusion, वरना ये बहुत इक्वल हो जाएगा। जैसे कि
In my view, the drawbacks of those changes are more significant than the benefits. यहाँ पे आप ये कहते हो कि इसके गैरफायदे जो है ये चेंजेस के ये ज्यादा है, सिग्निफिकेंट मतलब ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बेनिफिट्स. आप ऐसा भी कह सकते हो, while there are some advantages of this trend, I would argue that its disadvantages are more significant. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सेंटेंसेस है, मैं चाहूंगा इसको आप मेमोराइज कर लीजिए. इसमें दिस इज अ नो ब्रेनर. नो ब्रेनर मतलब इसमें अपना दिमाग मत दौड़ाओ, मैं जो कहता हूं वैसा करो, इसको मेमोराइज कर लो. Although there are few benefits of this practice, I opine that potential dangers from this are greater than the benefits we receive. एक चीज का याद रखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपका ओपिनियन सेम होना चाहिए. मेक श्योर कि अगर आपने ओपिनियन में लिखा है कि ड्रॉबैक ज्यादा है तो कंक्लूजन में भी वही लिखो कि ड्रॉबैक ज्यादा है. उल्टा पुल्टा नहीं हो जाना चाहिए, वरना बैंड्स नहीं आएंगे. फिर although some benefits can be seen from the phenomenon, the drawbacks are more significant. इसको आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे although some drawbacks can be seen from the phenomenon, the benefits are more significant. मतलब ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो. ये पूरे जो फ्रेजेस है उसमें there is no need to worry about that part. While there are some drawbacks of this trend, I would argue that the advantages more than compensate for any disadvantages. Is it getting clear? Or finally, despite some obvious disadvantages of this trend, I believe that these are outweighed by the advantages. यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, despite some obvious advantages of this trend, I believe that these are outweighed by the disadvantages. Is it clear or not, everybody? I am trying to explain it in the best possible manner. I am going slow ताकि आपको पता चले. जैसे आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया था, मैं चाहूंगा वैसे ही आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले और ये चीज को मेमोराइज कर लीजिए. आई वॉन्ट यू पीपल टू मेमोराइज दिस. ये बहुत अच्छी चीज है, इसको आप काफी ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो. एनी क्वेश्चंस? लेट मी नो व्हेन यू आर डन विद द स्क्रीनशॉट. आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आगे की स्लाइड में जाना चाहूंगा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे. अब डन एवरीबडी? चलिए आगे बढ़ते हैं. वेरी नाइस. नाउ लेट अस ट्राई टू प्रैक्टिकली यूटिलाइज दिस. वही ऐसे है. डू द डेंजर्स डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ केमिकल्स इन फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन आउटवे द एडवांटेजेस? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं. लेट मी हैव अ स्मॉल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. कैन एनीवन गिव मी द पॉइंट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स? यस, कैन एनीवन हेल्प मी आउट? आई एम विलिंग टू डिस्कस. कौन करेगा? चलो कौन ट्राई करेगा? आई वांट समबडी टू ट्राई. Yes. Yeah, Gautami. Who is going to? Chalo, chalo. Raise your hand. I am here. I want somebody to explain me. Yeah, Deepak जी आप करेंगे? चलिए बताइए. What are the advantages of using preservatives? I want. Yeah. Do I need to tell the advantages or what? Like, Yeah, tell me advantages as well. What are the advantages of using preservatives? The food can be longer served in plates. Very good. So, for example, can you give me an example of the food in which preservatives are used because of which it is the longevity is increased? As we are using preservative like in ice cream, we are using it, right? Very good. In ice cream, we are utilizing preservatives. Exactly, exactly. तो उसमें काफी preservatives का इस्तेमाल होता है. और ये preservatives का इस्तेमाल, ये जो additives है उसका इस्तेमाल प्रोडक्शन में कैसे होता है? Why do you utilize that in production? प्रोडक्शन में इस तरह से करते हैं. कोई कोई सर ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक चीज किसी सीजन में उगती है, ठीक है, तो उसको पूरे सीजन तक चलाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो एग्जैक्टली इसको हम लॉन्गेविटी कहेंगे, इसको हम लंबे समय तक चला सके उसके लिए. और दूसरा फायदा ये भी है प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स जिसको हम कहेंगे कि इससे प्रोडक्शन बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल यू नो द प्रोडक्शन, आपको शायद पता ना होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट और नॉट. काउस जो होती है, जो आपको मिल्क देती है, जो काउस होती है जो आपको मिल्क देती है, उसको भी मैंने देखा हुआ है, कहीं पे सुना हुआ है कि उससे भी काफी वो लोग ऑक्सीटिक एसिड के इंजेक्शंस देते हैं ताकि उसका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े. तो ऐसा भी सुना गया है. काफी जगह पे ऐसा भी है कि वेजिटेबल में भी इन मैन्योर ये प्रोडक्ट प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़े. ओके, नाउ आई नीड somebody to tell me about the disadvantages. What exactly? Can somebody help me out with disadvantages? Yes. पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो. आप कोई भी ऐसे लिखते हो, मैं चाहूंगा सारे लोग पहले ब्रेन सीधा लिखना चालू मत कर दो. 40 मिनट का टाइम दिया जाता है. यू आर गिवन 40 लॉन्ग मिनट्स टू थिंक, आई मीन टू राइट.
So you can utilize 5 minutes in brainstorming. आप अच्छे points होंगे तो अच्छी तरह से लिख पाओगे, confidently लिख पाओगे. तो मेरी सारे लोगों से गुजारिश है, सारे स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो लोग शांति से सुकून से पॉइंट्स को करें. हाँ, नाउ टेल मी एग्जैक्ट. टीजल इज गोइंग टू हेल्प मी आउट. टीजल, कैन यू टेल मी? या कैन एनीवन हेल्प मी आउट विद द आई मीन द डेंजर्स. आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा, लेकिन आई वाज विद कन्वर्सेशन विद दीपक जी, तो मैं, हाँ, सुरभि, कैन यू टेल मी? या let me unmute Surbhi. Yeah, Surbhi, what are the disadvantages of using chemicals? Yeah, Surbhi, can you unmute yourself? Yeah. Sir, chemicals can be dangerous for our health. Okay. In what way can you say that? How can you say that they are dangerous to health? Very good. TGL has written preservatives also damage growth and development of child. Okay, very good. They are bad for health, not healthy. Then chemicals can be hazardous on our health. Okay, very good. Okay. So let us, ताकि अब आपको brainstorming हो गया है, तो let us try to utilize this in our essay. Now I want you to see how we are effectively writing. Yeah, acetic. राज ने लिखा है कि sir, acetic acid is common preservative which can damage your enamel layer of teeth. Very good. बहुत अच्छा point दिया है राज ने. राज ने ऐसा लिखा है कि एसिटिक एसिड, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है कि एसिटिक एसिड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दांत के जो इनेमल होते हैं वो खराब हो जाते हैं. काफी प्रिजर्वेटिव्स फूड पॉइजनिंग भी करते हैं. ओहो, तेजल ने लिखा है कि ये काफी जैसे है जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस भी करते हैं. वेरी गुड पॉइंट्स बीइंग गिवन बाय ऑल ऑफ यू. यू पीपल आर सो वंडरफुल गिविंग मी सच पॉइंट्स. देखो काफी आप लोगों के पॉइंट्स से काफी दूसरे लोगों को भी फायदा हो रहा है. वेरी गुड. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस इन अवर एसे. तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, गौर से इसको पढ़े. मैंने सिर्फ 2 लाइन लिखी है. देयर आर ओनली 2 लाइंस दैट आई हैव रिटन एंड आई वांट, या, लीड्स टू अर्ली एजिंग. वेरी गुड दत्ता. So let us try to read it. Most foods that are purchased these days in small stores and supermarkets have chemicals in them, as these are used to improve production and ensure the food lasts for longer. So what I have done is I have just paraphrased this statement, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन दोनों की बात की है. तो प्रोडक्शन के लिए तो हमने ये इस्तेमाल किया, लेकिन प्रिजर्वेशन के लिए हमने ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है. Ensure the food lasts for longer. Although there are few benefits of this practice, I opine that the potential dangers from this are greater than the benefits we receive. तो यहाँ पे हमने 2 सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने ओपिनियन भी दिया है कि भले इसमें शायद कोई बेनिफिट्स, फ्यू बेनिफिट्स हो सकते हैं. मेरा मानना ये है कि इसमें जो डेंजर्स है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द बेनिफिट्स वी रिसीव. तो याद रखना है कि जब आप एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे लिखते हो तो आपको थीसिस स्टेटमेंट में ये बयां करना पड़ेगा कि आप क्या मानते हो. डू यू बिलीव कि एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है? अगर आपने ये नहीं किया तो ये गलत बात होगी, आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे. और उसी के कारण मैंने आपको बताया था आप ये सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करोगे. ये जो मैं वापस दिखा रहा हूं आपको स्लाइड्स पे, तो मैं चाहूंगा इसको आप मेमोराइज कर लीजिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने वापस कहना चाहूंगा, अगर आपने इस चीज का इस्तेमाल, पहले सेंटेंस का इस्तेमाल इंट्रोडक्शन में किया है, तो बाकी के सेंटेंस में से कोई भी एक सेंटेंस का इस्तेमाल आप कंक्लूजन में कर सकते हो. ओके, इज इट क्लियर नाउ एवरीबॉडी? If the opinion is not asked, Shruti, then you don't need to write. This is only for advantages, disadvantages ऐसे. जहां पे आपका ओपिनियन तो पूछा ही है ना, आपको ये कहा गया है कि आप क्या मानते हो. Do you believe that advantages outweigh disadvantages or vice versa? Okay, is this introduction read everybody? Is this introduction read by everybody? Clear? Very good. Okay, now बॉडी पैराग्राफ 1 जिसमें हमें ये बताना पड़ेगा, एक चीज का गौर करना है आप लोगों को कि अगर आप लिखते हो कि एडवांटेजेस का पल्ला भारी है डिसएडवांटेजेस से, आपको यहां पे भी दोनों तरफ तो लिखना ही है. काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि सर अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि डिसएडवांटेजेस का पल्ला बहुत भारी है एडवांटेजेस से, तो क्या मैं एडवांटेजेस ना लिखूं तो चलेगा? नहीं चलेगा. एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस में आपको दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, लेकिन जिसमें आपको लगता है कि पल्ला भारी है उसमें आप ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हो, लेकिन दोनों तरफ लिखना तो पड़ेगा ही. ओके, नाउ वी आर इन दिस पैराग्राफ, यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स. देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई chemicals are placed in food. Firstly, it is to improve the appearance of the product, and this is achieved via the use of colors. This encourages people to purchase food.
काफी जगह पे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पे कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। आप कह सकते हो कौन से फ्रूट में कलर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? आपने काफी देखा होगा, स्ट्रॉबेरीज देखी होगी, स्ट्रॉबेरीज। कुड यू सी, कैन यू सी दिस स्ट्रॉबेरीज, नो स्मॉल स्ट्रॉबेरीज, नो दे स्प्रे दिस रेड कलर ऑन इट, आपको बहुत लाल लाल लिखेगी, आपको लेने की तुरंत इच्छा हो जाएगी, इजंट इट? वेरी गुड। तो यहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए वापस, दिस एनकरेजेस पीपल टू परचेज फूड दैट मे अदरवाइज नॉट लुक टेम्पटिंग टू ईट। अब ये जरा गौर से देखिए मुझे क्या मैं लिखा रहा हूं। देखिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन मुझे समझाने की कोशिश करेगा? There are several reasons why chemicals are placed in food. Firstly, it is to improve the appearance of the product, and this is achieved via the use of colors. This encourages people to purchase food. मैं चाहूंगा ये स्टेटमेंट कोई मुझे समझाए. This encourages people to purchase food that may otherwise not look tempting to eat. कौन ये समझाएगा ये स्टेटमेंट? Who is going to explain me this statement? चलिए गाइस, कौन ट्राई करेगा मुझे? या किसी ने रेस किया है हैंड? देव, कैन यू एक्सप्लेन मी? या yes sir, good evening. गुड इवनिंग, टेल मी। ये एक सेंटेंस बताओ मुझे कि दिस एनकरेजेस पीपल टू परचेज फूड दैट मे अदरवाइज नॉट लुक टेम्पटिंग टू इट, ये समझाओ मुझे। हाँ सर, मतलब कोई कोई जो फार्मर्स होते हैं वो नहीं, ये फ्रूट्स तो हो में गया। केमिकल्स हाँ हाँ हाँ, ये कलर्स तो इस्तेमाल करते हैं, मुझे सिर्फ ये स्टेटमेंट समझाओ। डालते हैं, क्योंकि वो केमिकल्स इसीलिए डालते हैं क्योंकि लोग वो अट्रैक्ट हुए कलर से कि वेरी देखिए गुड। कि ये फ्रेश है और ये है, तो वो लोग परचेज ज्यादा करें लेकिन फ्रूट्स इसका उनके। मतलब क्या है? दैट मे अदरवाइज नॉट लुक टेम्पटिंग टू इट। हाँ, मतलब अगर वो डल दिखेगा तो वेरी लोगों गुड। को ऐसा ऐसा लगेगा कि ये वो पका नहीं है बराबर और ये फ्रूट टेम्पटिंग अच्छा मतलब नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पटिंग? टेम्पटिंग मतलब आपको इच्छा देता है, मतलब आपको अच्छा, हाँ टेम्प्ट करता है। तो अगर आप ये कलर्स नहीं इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि आप वो चीज लो ही नहीं, अट्रैक्टिव नहीं हो। इज इट गेटिंग क्लियर? तो पहला इंपॉर्टेंट है, लोग इस्तेमाल करते हैं एडिटिव्स का। थैंक यू देव, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन से दैट अगर ये नहीं इस्तेमाल करोगे तो लोग इसको पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि दिखने में लगेगा ही नहीं कि ये इसको लेना चाहिए। अब दूसरा रीजन क्या है? अनदर रीजन इज टू प्रिजर्व द फूड। दूसरा रीजन है टू प्रिजर्व द फूड। much of the food we eat would not actually last that long if it were not for chemicals that contain। कितना सुंदर सेंटेंस है, देखो। मच ऑफ द फूड वी ईट, ज्यादातर जो खाना हम इस्तेमाल करते हैं, देखो यहां पे देखो, मच का मतलब क्या है? ये मच क्या है, याद आ रहा है? मैंने सिखाया था आपको हेजिंग। मैंने सारा फूड नहीं किया, मच ऑफ द फूड किया है। क्लियर? तो हमने किया था कि जनरलाइज, ओवर जनरलाइज नहीं करना है। मच ऑफ द फूड वी ईट वुड नॉट एक्चुअली लास्ट दैट लॉन्ग। काफी सारा खाना जो हम खाते हैं वो शायद इतना लंबा समय तक न चले अगर हम इसमें केमिकल्स नहीं डालते हैं। इफ इट वेर नॉट फॉर केमिकल्स दे कंटेन। सो अगेन दिस इज एन एडवांटेज टू द कंपनीज दैट सेल फूड एज देयर प्रोडक्ट्स हैव अ लॉन्गर सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी सेल्फ लाइफ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ लाइफ? somebody need to explain me about self life। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। what is the meaning of self life? yeah, self, Harsh, can you explain me what is self life? I have unmuted you। यस सर। yeah, can you tell me what is the meaning of self life? सर वो जो कोई चीज है उसकी लाइफ वो या तो लॉन्ग चलती है या तो बिगड़ जाती है कोई चीज। ओके फाइन, इसको हम कहेंगे, ओके ओके थैंक यू। इसका सेल्फ लाइफ इज बेसिकली एन इडियोमेटिक फ्रेज। सेल्फ लाइफ हम कहते हैं, सेल्फ मतलब, सेल्फ लाइफ का मतलब वो सेल्फ में कितने लंबे समय तक पड़ी रहती है। तो अगर एक्सपायरी डेट ज्यादा है तो लंबे समय तक सेल्फ में पड़ी रहेगी, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट के बदले हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्फ लाइफ का। इज इट गेटिंग क्लियर? ओके, नाउ अब इसको गौर से देखिए। पहला फायदा ये है कि कलर्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो कलर्स से लोग टेम्प्ट हो जाएंगे चीज खरीदने के लिए, और दूसरा है केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो इस पैराग्राफ में हमने एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करने का फायदा क्या है उसके बारे में किया है। अब ये जो मैं दूसरा बॉडी पैराग्राफ है वो बहुत अच्छा बॉडी पैराग्राफ है और इसको आपने लंबा करना है। इफ यू आर राइटिंग 3 और 4 सेंटेंसेस इन बॉडी पैराग्राफ 1, तो आप अगर बोलते हो कि डिसएडवांटेजेस का पल्ला भारी है, तो देखिए इसकी साइज भी ज्यादा है।
आप देख सकते हो कि मेरे इस पैराग्राफ की साइज भी थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें मैंने 5 सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया है क्योंकि आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट 2 डिसएडवांटेजेस. सो लेट अस ट्राई टू रीड दिस. Although companies claim these food additives are safe, most of the chemicals used as preservatives are carcinogenic by nature. कार्सिनोजेनिक मतलब ऐसे केमिकल्स जिससे आपको कैंसर होने की संभावना है. नाउ अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि अगर आप जो खाते हो, फॉर एग्जांपल अमेरिका में कैंसर की रेट ज्यादा इसलिए है थे और ज्यादा अभी है क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल होता है. एंड व्हेन यू ईट प्रोसेस्ड फूड उसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स तो होने ही होने हैं. आपको शायद पता होगा कि इंडिया में कैंसर था ही नहीं. आपको शायद पता होगा कि इंडिया में कभी कैंसर हुआ ही नहीं था. लोगों को डायबिटीज होता था, लोगों को ब्लड प्रेशर होता था, लेकिन कैंसर होता ही नहीं था. लेकिन क्योंकि हम लोगों ने वेस्टर्न पीपल का फॉलो करना चालू किया, वी आर ऑल्सो ईटिंग प्रोसेस्ड फूड. आप देख सकते हो कि इंडिया में भी कैंसर के काफी इंस्टेंसेस हो गए हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि although companies claim these food additives are safe, most of the chemicals used as preservatives are carcinogenic by nature. It is common to read reports. बहुत आम हो गया है ऐसे रिपोर्ट्स को पढ़ना these days in the press, मतलब कि न्यूज़पेपर और प्रेस में, about possible links to various health issues such as cancer. काफी प्रेस में हमने ऐसा देखा है कि एक स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है और लिंक बताई जाती है कि ऐसे फूड खाने से आपको कैंसर ज्यादा होता है. नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल और बहुत सही एग्जांपल है. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आप लोगों में से किसी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था एसिटिक एसिड का, जिससे दांत के इनेमल खराब हो जाते हैं, वो भी आप लिख सकते हो. लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे कैंसर की बात की है तो देखिए हमने मोनोसोडियम ग्लूटामेट की बात की है, MSG. और आपको पता होगा चाइनीज फूड में इसका इस्तेमाल बहुत होता है. फॉर इंस्टेंस, मोनोसोडियम ग्लूटामेट कॉमनली यूज्ड इन प्रोसेस्ड फूड्स लाइक फ्रोजन डिनर्स, सॉल्टी स्नैक्स, जो आप सॉल्टी स्नैक्स खाते हो, एंड कैंड सूप्स ऐसे जो कैंड वाले हैं, इज सेड टू बी द प्राइम रीजन ऑफ कैंसर अमंग द यूएस पीपल. ऐसा देखा गया है कि MSG जो इस्तेमाल होता है फ्रोजन डिनर में, सॉल्टी स्नैक्स में और कैंड सूप्स में, ये सबसे बड़ा कारण है कैंसर होने का यूएस के लोगों में. दूसरा डिसएडवांटेज, moreover food additives have also been linked to problems such as hyperactivity in children. काफी आप लोगों में से किसी ने ऐसा भी बताया था कि सर इससे चिल्ड्रन में भी काफी प्रॉब्लम्स होती है. यही चीज है कि हाइपर एक्टिविटी मतलब बच्चा हाइपर हो जाता है. ऐसा लंबे समय तक अगर इस्तेमाल करते रहते हो ये प्रोसेस फूड्स का तो और उसके एडिटिव्स का, तो बच्चा हाइपर हो जाता है. It has been found that children relying heavily on fast food have been found to be nervous, restless and easily bored. आज के बच्चे आप देखेंगे तो नर्वस जल्दी हो जाते हैं, रेस्टलेस मतलब एकदम उथल पाथल करने लगते हैं और कोई भी चीज से जल्दी से कंटाल जाते हैं. तो ऐसा ये माना गया है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करना जिसमें एडिटिव्स का इस्तेमाल होता है. तो यू कैन सी ओवर हियर दैट आई हैव गिवन वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि ये प्रिजर्वेटिव से क्या होता है. नंबर 1 पहला डिसएडवांटेज, इससे कैंसर होने की संभावना है. आपने ये भी देखा कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया मोनोसोडियम ग्लूटामेट का. याद रखना है कि आपको दो बॉडी पैराग्राफ में से किसी भी एक बॉडी पैराग्राफ में कम से कम एक एग्जांपल तो देना ही है. एक एग्जांपल दोगे तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन. और दूसरा यहाँ पे डिसएडवांटेज लिखा है कि इससे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी हो जाती है. सो दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज. नाउ आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द कंक्लूजन. टू कंक्लूड, डिस्पाइट द फैक्ट that there are a few benefits to placing chemicals on food, भले ही थोड़े से benefit है, I believe that most of the chemicals used bring severe health hazard to the people. मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर chemicals इससे लोगों के health hazard में इजाफा होता है. Hence, this unscrupulous, can you tell me unscrupulous, meaning of word unscrupulous, can anyone tell me? It's a very nice word. अनस्क्रपुलस का मतलब होता है इनजेन्युइन, जो जेन्युइन नहीं है. सो हेंस दिस अनस्क्रपुलस प्रैक्टिस शुड इमीडिएटली बी बैंड सो दैट पीपल कैन कंटिन्यू टू लिव अ हेल्दी लाइफ. यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया है. तो एक चीज याद रखे कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन दोनों सेम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आइडिया. एंड दिस इज हाउ द एंटायर एसे इज गोइंग टू बी रिटन. ये आपका पूरा एसे है. आप देख सकते हो, in the first paragraph I have written only 2 lines,
In the second body, I mean body paragraph 1, I have written 4 lines. In the third body paragraph, I have written 5 lines. And in the conclusion, I have written 2 lines. Total मेरी जो है वो 13 lines है. Any questions, any doubts? Is it clear or not? Everybody, any questions? अब आप कोई भी advantages outweigh disadvantages वाला ऐसे लिख पाना चाहिए आपको. You should be able to, you know, utilize. Yeah, you can use that. Yeah. Yeah, Parth, you can do that, but I would want you to avoid that. एक एग्जाम्पल तो देना बहुत इंपॉर्टेंट है श्रुति. यू नीड टू गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बोलिए. और कोई क्वेरीज एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई वांट यू पीपल टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. और मैं चाहूंगा आप देखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले लीजिए, एंड देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल. ऐसे का टॉपिक अगर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जो मैंने पहले बताया था. And you can also take the screenshot of this format. And you can also take the screenshot of this essay topic, so that you can always refer to it when you are, you are before the few days of the examination. Exam के पहले ऐसी चीज को refer करना है आपको, ताकि बिल्कुल पक्का होके, बिल्कुल confident होके आप exam दे पाए. और मैं बताना चाहूंगा कि काफी advantages outweigh disadvantages वाले ऐसे पूछे गए हैं. So if you know how to do this, it will definitely help you out. Okay. Any questions, any doubts, students? There is no need to give suggestion. देना चाहो तो एक लाइन दे सकते हो. किसका स्क्रीनशॉट बाकी है? खुशी. Okay. Okay. Now I am planning to do this. मैं थोड़ा सा true false not given लेना चाहूंगा. Are you all people ready, or you want to go for Saturday afternoon? So we did three things today. हमने 3 चीजें की. मैंने आपको पहले सिखाया था, the present perfect continuous. Then we did, generalization कैसे करना है. Then we did advantages outweigh disadvantages. So if you are ready, I can also take, छोटा सा true false not given करते हैं. चलिए, let us do true false, small true false not given. चलिए. महिमा, हमने ये वर्ड्स जो है मैंने बताया था ना, ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, और ये रहे. दिस इज द फॉर्मेट दैट यू कैन यूटिलाइज. ओके, या. सो लेट अस टेक अ न्यू वन. आई होप नोबडी शुड लीव. छोटा सा देखते हैं. लेट मी सी वेयर इट इज. हाँ, ये रहा. सो लेट अस टेक अ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन फॉर्मेट. अब मैं चाहूंगा आप लोग जाए नहीं, थोड़ा सा मजा आएगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का. ये पैसेज है आपका. अब इसको गौर से पढ़ लीजिए. आई वांट एवरीबॉडी टू रीड दिस पैसेज एंड विल डू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. सिर्फ 5 क्वेश्चंस करेंगे. लेट अस सी. खुशी, यू आर गोइंग टू गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस. डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस, सो यू कैन, आप बिल्कुल सुकून से इसका स्क्रीनशॉट ले पाओगे. यू शुड गेट दिस रिकॉर्डिंग प्रॉब्ली ऑन मंडे. डोंट वरी. ओके, आर यू ऑल रेडी स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट है. Are you all ready for this passage, everybody? I want to get answers from everybody. Yes? Okay, great. चलिए, बहुत मजा आएगा. ये true false not given बहुत मजा आएगा. चलिए, go through this passage and let me know. Okay, go through this passage. Okay, let me do one thing. Let me help. Is anyone willing to read this passage? कोई रीड करना चाहेगा तो बहुत मजा आएगा. कौन रीड करना चाहेगा? लास्ट टाइम हिमांशी वाज देयर, सो आई वांट समबडी एल्स टू डू दैट. जल्दी विल डू इट. जल्दी. ओके, जल्दी विल डू इट. चलिए. या, चलिए जल्दी. Hello sir, good evening. गुड इवनिंग. जल्दी. नाउ दिस पैसेज, एक काम करते हैं. या समबडी एल्स. या, दिस पैसेज इज अबाउट अ फ्रॉग. अ फ्रॉग एक प्रजाति ऐसी है. फ्रॉग मतलब ओवरऑल फ्रॉग मतलब जो आपको मेंढक जो जिसको बोलते हैं, वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं. तो ये पूरा पैसेज उसके बारे में है और बहुत मजा आएगा. काफी एनवायरनमेंट के रिलेटेड टॉपिक है, तो यू विल एंजॉय. या जल्दी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग. Okay, sir. When When was the last? Okay, yes sir.
When was the last time you saw a frog? Chances are, if you live in a city, you have not seen one for some time. Even in wet areas, once teeming with frogs and toads, it is becoming less and less easy to find those slimy, hopping, and sometimes yeah. slimy, hopping, and sometimes poisonous members of the animal kingdom. All over the world, even in remote jungles on the far side of the globe, frogs are losing the ecological battle for survival, and biologists are at a loss to explain their demise. Are amphibians simply oversensitive to changes in the ecosystem? Could their rapid decline in numbers be signaling some coming environmental disaster for us all? वेरी गुड, ओके फाइन. नाउ इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हो कि फ्रॉग्स जो है, आप ऐसे चांसेस है शायद आप फ्रॉग्स को देख ही नहीं पाओ. पहले ऐसा था कि फ्रॉग आपको सिटी में मिल जाते थे तो आप देख ही नहीं पा रहे हो. यहाँ पे लिखा है लेस इजी टू फाइंड दो स्लीमी, मतलब पतले स्लीमी मतलब जो एकदम स्लीपरी होते हैं वैसे. हॉपिंग मतलब जो एक से दूसरी जगह पे कूद कूद के लगाते हैं उसको हॉपिंग कहेंगे. समटाइम्स पॉइजनस भी होते हैं. और यहाँ पे जो इकोलॉजिकल, ये कहना चाहता है कि क्या फ्रॉग्स जो है वो इकोलॉजिकल बैटल जो है अपनी वो गवा चुके हैं. और बायोलॉजिस्ट जो है आर एट लॉस टू एक्सप्लेन दैट डिमाइस. डिमाइस मतलब उनका खात्मा होना. एम्फीबियंस का मतलब ऐसे प्राणी जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं. तो यहाँ पे लिखा है आर एम्फीबियंस, मतलब ये एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं फ्रॉग्स की. आर फ्रॉग्स सिंपली ओवर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द इकोसिस्टम? कुड दैट रैपिड डिक्लाइन, क्या उनका रैपिड डिक्लाइन इन नंबर्स क्या हमें ये सिग्नल देता है कि भविष्य में कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर आने वाला है? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? अंडरस्टूड? Okay, great. So yeah, can you read? Yeah, second paragraph, jaldi. Yes, sir. Yes, sir. This frightening scenario is in part the consequence of a dramatic increase over the last quarter century in the development of once natural areas of wet marshland, home not only to frogs but to all manner of wildlife. Very good. Yet there are no obvious reasons why certain frog species are disappearing from rainforests in southern hemisphere, which are barely touched by human hand. Okay. The mystery is unsettling to say, at least, for it is known that amphibian species are extremely sensitive to environmental variations in temperature and moisture levels. The dangerous is that planet Earth might only lose a vital link in the ecological food chain, that is, frogs keep populations of otherwise pestilent insects at manageable levels, but we might be increasing our output of air pollutants to level that may have already become irreversible. Frogs could inadvertently warning us of a catastrophe. कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है डिजास्टर. इज इट गेटिंग क्लियर? कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है डिजास्टर. ये यहाँ पे ये पूरा फ्राइटनिंग सिनारियो जो है, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है. ओके, नाउ समबडी एल्स वांटेड टू रीड. या महिमा, यू वांटेड टू रीड? ओके, जल्दी, कैन आई गिव चांस टू महिमा? Yes, sir, sure. Okay. Hello, sir. Hello, can you read? Yes, sir. Okay, so yeah, an example of. Okay, an example of bizarre occurrence regarding the. Okay. What is the meaning of bizarre? Bizarre मतलब एकदम ऐसी चीज जो आप मतलब एकदम अलग, जो आपने देखी ना है ना सुनी है, इसको हम बोलेंगे bizarre. Clear? Okay. An example of bizarre occurrence regarding a species of frog that dates from the summer of 1995. धीरे धीरे पढ़ो. हाँ, from the summer of 1995. Then when an explosion of multicolored frogs of the species Rana Clapton esculenta occurred ये species का नाम है Rana Clapton esculenta. इसका मुझे मतलब मत पूछना क्योंकि ये species का नाम है. Okay, occurred in the Netherlands. Very good. Then normally these frogs are brown and greenish brown, but some unknown contributory factors is turning these frogs yellow or orange. Nonetheless, so far the unusual by and even Mahima, we have lost. Yeah, एक मिनट. in contemporaries. Yeah, Mahima, we lost your voice. Normally से बात वापस पढ़ना चालू करोगे? Normally these frogs. Normally these frogs are brown and greenish brown, but some unknown contributory factor is turning these frogs yellow and or orange.
Nonetheless, so far the unusual bi and even tricolored frogs are functioning similarly to their normal skin contemporaries. Hmm. It is Yes. thought that frogs with lighter colored skins might be more likely to survive in increasingly warm climate due to global warming. Very good. Okay. Now, Surbi, yeah. Let me give chance to Surbi. Why girls are only coming up, for reading? No boys are coming. Okay, Surbi, can you read? Yes, sir. Okay, one theory. One theory put forward to explain extinct amphibian species What is the meaning that of word extinct? Extinct मतलब जो नाश हो चुका है. Okay. हाँ. amphibian species that seems to fit the facts concerns that the Depletion of the ozone layer. ozone layer, a well-documented phenomena which has led to a sharp increase in ultraviolet radiation levels. The ozone layer is meant to shield the Earth from UV rays, but increased radiation may be having a greater effect upon frog populations than previously believed. Okay. Another theory is that worldwide temperature increases are Upsetting. upsetting the breeding cycles of frogs. Okay, so this is entire phenomenon about frog. एक frog की प्रजाति जो धीरे धीरे कम हो रही है और ये इसका फायदा, फ्रॉग का फायदा क्या है ये बताया गया था और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या साइंटिस्ट को पता नहीं चल रहा है और क्या लगता है कि कोई डिजास्टर आने वाला है या तो फिर ऐसा है कि यूवी रेज ज्यादा है उसके लिए उनकी ब्रीडिंग साइकिल शायद उससे इफेक्ट हो रहा है. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दिस पैराग्राफ. So let us try to go through it. Let us go step by step in getting the answer. This is the first thing. This is the first question that I would like to discuss. आप अपना टाइम लेके मुझे बताइए कि इसका आंसर ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है. लेट अस सी. शांति से, टेक योर टाइम. आई वांट एवरीबॉडी टू टेक योर टाइम. यस, आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी. चलिए चलिए, क्या आंसर है? काफी लोगों के आंसर है. द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी, पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनन. इसका आंसर क्या है? सो यू कैन सी फ्रॉग्स आर डिसअपियरिंग ओनली फ्रॉम सिटी एरियाज. फ्रॉग्स सिर्फ और सिर्फ सिटी एरिया से डिसअपियर हो रहे हैं. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे लिखा है कि यू लिव इन अ सिटी, यू आर सिटी में तो डिसअपियर हो ही रहे, लेकिन यहाँ पे देखो, इवन इन वेट एरियाज वंस टीमिंग विद फ्रॉग्स एंड टॉर्स, it is becoming less and less easy to find those slimy hopping and sometimes poisonous members of the animal kingdom. मतलब सिटी के एरिया में से तो डिसअपियर हो ही रहे हैं वो लोग, अब वेट एरियाज मतलब जो बाहर के एरिया है, सिटी के बाहर के एरिया है, वहां से भी डिसअपियर हो रहे हैं. देखिए, इट इज बिकमिंग लेस एंड लेस टू फाइंड. और क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ सिटी एरियाज में से डिसअपियर हो रहे हैं, जबकि पैराग्राफ ये कह रहा है कि सिटी एरियाज में तो डिसअपियर हो ही रहे हैं, साथ साथ में जंगलों में और वेट एरियाज में भी डिसअपियर हो रहे हैं. इसका मतलब द आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? अंडरस्टूड नाउ? दोनों में से आप डिसअपियर हो रहे हैं, देखो. तो इट इज क्लियर नाउ. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ेंगे. एनीबॉडी नीड्स एक्सप्लेनेशन? आई विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. इज इट फाइन एवरीबॉडी? यस? ओके, ग्रेट. आप यस करोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा. एक आध दो लोगों का यस आया है. इफ यू आर नॉट क्लियर, लेट मी नो, और एल्स आई विल गो फॉरवर्ड. ओके, ग्रेट. या इट इज फॉल्स. देखो यहाँ पे नीचे लिखा है, क्यों फॉल्स है? यहाँ पे लिखा है कि इट इज ओनली डिसअपियरिंग फ्रॉम सिटी एरिया, जबकि यहाँ पे लिखा है दोनों में से जा रहे हैं, वो दोनों में से कम हो रहे हैं. क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे. चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं शांति से.
Yeah, is the screen visible now? ओके यहाँ पे बात की है फ्रॉग्स एंड टॉड्स आर यूजुअली पॉइजनस। यहाँ पे लिखा है फ्रॉग्स एंड टॉड्स आर यूजुअली पॉइजनस, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, अगर गौर से देखें इसको, तो यहाँ पे लिखा है कि लेस एंड लेस इजी टू फाइंड दो स्लीमी हॉपिंग एंड समटाइम्स पॉइजनस, मतलब बहुत कम बार पॉइजनस होता है। इज इट गेटिंग क्लियर? या वरुण, दैट्स नॉट एन इश्यू वरुण। ओके, सो इज इट क्लियर? यहाँ पे लिखा है समटाइम्स पॉइजनस और यहाँ पे लिखा है यूजुअली पॉइजनस, मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि ज्यादातर पॉइजनस होते हैं और यहाँ पे लिखा है कि बहुत कम बार पॉइजनस होते हैं। Therefore, the answer is contradictory. Question is contradictory to the information given. Therefore, the answer is going to be false. Is it clear, everybody? Understood now? Yes or no? यहाँ पे यूजुअली लिखा है और यहाँ पे समटाइम्स लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि यूजुअली पॉइजनस है, यहाँ पे लिखा है समटाइम्स पॉइजनस, मतलब पूरा अलग है, ऑपोजिट है, सो इट इज फॉल्स। लेट अस टेक द थर्ड वन। चलिए, वेरी गुड, काफी लोगों के बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर्स। वेरी नाइस, मतलब आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ठीक से चल रही है। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिस्ट आर अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई फ्रॉग्स आर डाइंग, मतलब वो लोग समझा नहीं पा रहे हैं कि फ्रॉग्स क्यों मर रहे हैं। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है एंड बायोलॉजिस्ट आर एट अ लॉस टू एक्सप्लेन देयर डिमाइज, मतलब एट अ लॉस टू एक्सप्लेन मतलब उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है, उनको पता नहीं है कि भाई ये फ्रॉग्स जो है वो किस लिए, डिमाइज का मतलब मरना। तो सैड हम बोलते हैं, किसी की सैड डिमाइस हो जाती है, मतलब किसी का दुख भरा अवसान हो जाता है, तो उसका डिमाइस बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिस्ट आर एट लॉस टू एक्सप्लेन, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, तो ये चीज ही यहाँ पे दी है। देयरफॉर द आंसर ऑफ थर्ड इज गोइंग टू बी ट्रू। इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? अंडरस्टूड? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ेंगे। शैल वी गो अहेड नाउ? शांति से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, yes, come up with answers. Very few people have given me the answers. Okay, चलिए इसका पढ़ते हैं। The frogs, yeah, many of you are okay. Let us see. The frog's natural habitat is becoming more and more developed. उसका natural habitat है वो more और more developed हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा develop हो रहा है। तो अगर आप वही देखेंगे, the frightening scenario is in part the consequence, मतलब रीजन है। ये फ्राइटिंग सिनारियो क्या था? जो फ्रॉक्स की जो बस्ती है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो दैट इज अ फ्राइटिंग सिनारियो। वो फ्राइटिंग सिनारियो किसके लिए है? तो यहाँ पे लिखा है इस पार्ट द कॉन्सिक्वेंस, मतलब परिणाम है किसका? ड्रामेटिक इंक्रीज ओवर द लास्ट क्वार्टर सेंचुरी, ड्रामेटिक इंक्रीज हो रहा है पिछले 25 सालों में
इन द डेवलपमेंट ऑफ वंस नेचुरल एरियाज ऑफ वेट मार्शलैंड, ये जो नेचुरल एरियाज है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसके कारण ये फ्राइटनिंग सिनारियो है। तो उसी चीज का यहाँ पे जिक्र है कि फ्रॉग्स नेचुरल हैबिटेट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डेवलप्ड। तो जाहिर है द आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू। इज इट गेटिंग क्लियर? देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉग्स नेचुरल हैबिटेट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डेवलप्ड, तो वही तो लिखा है द फ्राइटनिंग सिनेरियो इज इन पार्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ड्रामेटिक इंक्रीज। देखो यहाँ पे लिखा है ड्रामेटिक इंक्रीज मतलब मोर एंड मोर डेवलप्ड, increase over the last quarter century in the development of once natural areas of wet marshland। तो वही चीज का जिक्र है क्वेश्चन और पैराग्राफ में, and therefore the answer is going to be true। any questions, any doubts in that, you can refer to it once again। क्लियर हो गया? अगर आपकी गलती हुई है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको गौर से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एक भी चीज मैं अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो मैं आपको समझाऊंगा, बट देयर इज दिस इज एब्सोल्युटली प्रिसाइज, सो देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, चलिए आगे बढ़ना है। एम आई स्पॉइलिंग योर सैटरडे स्टूडेंट्स? एम आई स्पॉइलिंग योर सैटरडे? लेट मी नो और एल्स आई विल डिसकंटिन्यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो वरीज। ओके ठीक है, चलिए। attempts are being made to halt the development of wet marshland। चलिए देखते हैं, let me know the answer। okay, thank you Maya। attempts are being made to halt the development of wet marshland। कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है, इसका जिक्र नहीं है दीपक जी, कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। कहाँ लिखा है कि अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, गवर्नमेंट अटेम्प्ट कर रही है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसको रोका जाए, इसका जिक्र कहीं नहीं है। दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी not given। is it getting clear? the answer is going to be not given because there is no mention that government is making conscious efforts to stop the development of this marshland। so answer is going to be not given। understood everybody? कहीं जिक्र नहीं है कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the meaning of pest? What is the meaning of word pest? का मतलब क्या होता है? Pest is, what is pest? Pest क्या होता है? Insects। आपको पता है वो पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं आपके वहां पे, दीमक है वगैरह जो है, वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको हम पेस्ट कहेंगे। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर्स, आई एम सो हैप्पी। चलो मेरी मेहनत काम लगी, आप लोगों की मेहनत ज्यादा काम लगी। ओके, फ्रॉग्स आर इंपॉर्टेंट इन द इकोसिस्टम बिकॉज दे कंट्रोल पेस्ट। फ्रॉग एक इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों की जो है वो जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करते हैं, और उसी चीज का जिक्र यहाँ पे किया है। इसको गौर से देखेंगे। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर्स, इनफैक्ट एवरीबडी इज गेटिंग द राइट आंसर। The danger is that planet Earth might not only lose a vital link in the ecological food chain, frogs keep populations of otherwise pestilent insects at manageable levels। यहाँ पे लिखा है कि frogs जो pestilence मतलब insects जो होते हैं उसकी जो population है उसको control करता है। तो इसका मतलब the answer is going to be true। Clear everybody? Okay, आगे बढ़ते चलिए।
ओके, इट इज नॉट नोन वाई द नेदरलैंड्स फ्रॉग्स आर चेंजिंग कलर। अगर आपने देखा होगा ये पूरे पैराग्राफ में एक ऐसी चीज आपने अगर देखी होगी गौर से, तो फ्रॉग्स जो है अपना कलर चेंज कर रहे हैं। आपने देखा होगा फ्रॉग्स जो है वो कलर चेंज कर रहे हैं अपना। तो ये क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि इट इज नॉट नोन व्हाई द फ्रॉग्स, सॉरी, इट इज नॉट नोन, जस्ट अ मिनट, या इट इज नॉट नोन व्हाई द नेदरलैंड फ्रॉग्स आर चेंजिंग कलर। तो उसी चीज अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है बट सम अननोन कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो अननोन है। और यही चीज यहाँ पे लिखी है, इट इज नॉट नोन। दैट मीन्स पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा फैक्टर है जिसके कारण फ्रॉग्स अपना कलर चेंज कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? श्योर? Yes, everybody, is it clear? Yes or no? Very good. Very nice. चलिए अब छोटा सा, चलो एक ही बार है, चलो ये मजा आएगा। 2-3 ही है, there are only 2 left. गौर से देखो, शांति से गौर से देखो। हाईली कलर्ड फ्रॉग्स आर एन अनयूजुअल फिनोमिना इन द नेचर, ऐसा कहाँ लिखा है? कैन एनीवन टेल मी वेयर इज दिस मेंशन्ड इन द पैरा? मुझे तो दिखा नहीं, आप लोगों को कहाँ दिख गया बताओ, कहाँ लिखा है ऐसा? टेल मी वेयर इट इज मेंशन्ड दैट ये अनयूजुअल फिनोमिनन है, बताओ कहाँ लिखा है? ये यूजुअल फिनोमिनन है, अनयूजुअल फिनोमिनन है, ऐसा कहाँ लिखा है? लेट मी नो, आई वुड लाइक टू नो। मैंने 4 बार पैरा पढ़ा, मुझे तो नहीं दिखा, आप लोगों को कैसे दिख गया? आंसर बिजारे अकरेंस है, लेकिन अनयूजुअल फिनोमिनन कहाँ है? Okay, so answer is going to be not given. Understood? ये एक्सप्लोजन हुआ ना, ये देखो, ये जो ये बिजारे अकरेंस है वो मेरी बात सुनिए, काफी लोग ऐसा बोले सर बिजारे तो लिखा है, लेकिन बिजारे क्या लिखा है? बिजारे उनकी जो एकदम अचानक ही उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई, एक्सप्लोजन होगी, वो बिजारे हुआ। लेकिन ये कलर, हाई कलर फ्रॉग्स वो अनयूजुअल है, वो कहीं पे भी जिक्र नहीं है। सो आंसर इज देयरफॉर गोइंग टू बी नॉट गिवन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अनयूजुअल इसमें नहीं है, ये जो है ये कलर की बात चल रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ द फ्रॉक्स, कलर और फ्रॉक्स के बारे में है। वो अनयूजुअल बाई कलर्ड, एक मिनट, अनयूजुअल बाय एंड इवन ट्राई कलर फंक्शनिंग। अनयूजुअल मतलब वो होते नहीं है, बाय मतलब होते, लेकिन यहां पे है कि ये कलर जो है वो अनयूजुअल फिनोमिनन है, वो नहीं है। देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। ये इनके फंक्शनिंग के बारे में है, और यहाँ पे ये कलर, क्योंकि कलर्स तो होते ही है फ्रॉक्स के, वो अनयूजुअल फिनोमिनन है ही नहीं, तो इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, लेट अस टेक द लास्ट वन। चलिए, फाइन, द लास्ट वन।
ये बहुत अच्छा है, अगर इसको आप ठीक से आंसर देते हो तो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस आंसर्स करेक्ट. ओके, द मल्टी कलर्ड फ्रॉग्स आर एग्जिबिटिंग एबनॉर्मल बिहेवियर. जो मतलब मल्टी कलर है वो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहे हैं. अब इसको गौर से देखो, देखो यहाँ पे देखो. आई वुड लाइक टू मार्क दिस ओवर हियर. अब बताओ क्या है. क्या आएगा? आप पता चल गया आंसर क्या है? आप तो सबके सही आंसर आ रहे हैं, पहले गलत आ रहे थे, अब सही आ रहे हैं. दैट मीन्स यू आर नॉट लोकेटिंग द आंसर प्रॉपर्ली. आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स. इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है. उसका ऐसा लिखा है कि उसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल उसके काउंटर पार्ट जैसा ही है. देयर इज नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट. So this is not going to be true, not given. देखो लिखा है nonetheless so far the usual, unusual, bi and even tricolored frogs are functioning similarly to their normal skin contemporaries. मतलब उनका बिहेवियर अभी सिमिलर ही है, उनके सिर्फ कलर में इधर उधर हुआ है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल ही है. That means answer is going to be false. Is it getting clear students? Yes or no now? अभी और दो है लेकिन I would like to complete now because almost 1.5 घंटा होने को आया, 7:30 हुए हैं. I hope you enjoyed the session everybody. It's almost 7:30 according to my watch. We took the session for almost 1.5 hours. Okay, thank you so much students. So हमने 4 चीजें की, भाग मत जाना, लेकिन 4 चीजें हमने की. We learned about present perfect continuous. Thank you Rushika, thank you Drumil for saying it was very clear. दूसरा हमने जो किया वो याद रखना, generalization नहीं करना है. You don't need to do for generalization. तीसरी चीज आपको याद करनी है, मैंने वो बताया था, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे. थैंक यू हिमांशु. तीसरा जो आपको याद रखना है वो चीज करनी है. और चौथा ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. जितनी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना फायदा होगा. यू कैन गो फॉर द कैम्ब्रिज. थैंक यू हिमांशु फॉर सेइंग दिस. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर बेयरिंग मी ऑन सैटरडे नाइट. मैं आपकी सैटरडे नाइट पे खराब कर रहा हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप लर्न कर रहे हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. थैंक यू. थैंक यू शार्दुल. थैंक यू एवरीबडी.